ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ PSSB ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 8 ਤੋਂ 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਰਡ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੈਕਰਡ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਆ ਨੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਔਰ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਿ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਟੇਨ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇਟ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ। ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1773 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1858 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ। ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਸਦਾ 1858 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਐਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1793, 1793 1813, 1833, 1853। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, BOC ਔਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਐਕਟ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935 ਤੱਕ, ਇਹ 6 ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ, ਯਾਨੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1773 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1858 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
इस दे विच सब तो पहला जो एक्ट आंदा है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस दे विच की कहा गया, दिस वाज द फर्स्ट स्टैप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सी जी इस दे विच क्या गया, पहली बार स्टैप लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल और रेगूलेट करने के लिए जो काम सी सारा किस दे अंडर होएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होएगा इंडिया का। यह तो हमने याद रखना है, यह पहली बार स्टैप लिया गया रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ईस्वी के विच। नैक्सट है अपने कोल द पॉलीटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनस, यानी जो पॉलीटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से जोड़े कंपनी के वो पहली बार रिकॉगनाइज किए गए इस एक्ट के विच। यह क्वेश्चन एग्जाम च पूछा जा चुका है। यह है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उस तो बाद एक होर क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि PPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इस दे विच एक कमेटी का फॉर्मेशन होया सी, उसके हैड कौन बने सी, यानी उस कमेटी का नाम की है, उस कमेटी का नाम है PM नॉर्थ कमेटी। PM नॉर्थ कमेटी है जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन बनाई गई सी। नैक्सट है अपने कोल जो इतने गवर्नर होंदा सी बंगाल का, इसनों गवर्नर जनरल बना दिता गया बंगाल का। यह तो हमने याद रखना है, यानी जो भी ब्रिटिश टैरेटरी सी इंडिया के विच उन्हां दा गवर्नर जनरल बनाया गया। यह पहले पर्सन कौन बने सी, वारन हास्टिंग्स बने सी। पहले गवर्नर जनरल कौन बने सी बंगाल के, वह बने सी वारन हास्टिंग्स। इन्हां कोल अथॉरिटी सी, यानी इन्हां दे अंडर 3 प्रेजिडेंसीज आ रही सी, किहड़ियां सी, मद्रास, बॉम्बे ते कोलकाता। यह क्वेश्चन एग्जाम च आ चुका है, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। नैक्सट अपने कोल एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिस दे विच 4 मैंबर सी जो कि हैल्प करेगी किसनों, गवर्नर जनरल नूं। जो वैरन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनाए गए सी, इन्हां दे हैड किया सी, यानी यह गवर्नर जनरल बने सी वैरन हेस्टिंग्स। इन्हां दे लई, इन्हां दी हैल्प दे लई 4 मैंबर एक ग्रुप बनाया गया जिसनों एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम दिता गया। यह तो हमने याद रखना है, इन्हां दी हैल्प दे लई बनाया गया सी। नैक्सट है सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा जाता है अक्सर कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये पहली बार एस्टैबलिश किया गया, उसका आंसर होगा कोलकाता। कदों किया गया, 1774 के। अगर पूछा जाए एक्ट तो अपना आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर पूछा जाए ईयर, यानी कि इस ईयर के इसमें सैटअप किया गया, उसका आंसर होगा 1774। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तो इलावा ये भी याद रखो पहले जो चीफ जस्टिस बने सी इस सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के, वो बने सी लॉर्ड एलिजा एम्पे, लॉर्ड एलिजा एम्पे। नैक्सट है जो ऑफिसर सी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सी, इस दे जिहड़े ऑफिसर सी इन्हों रोकया गया प्राइवेट ट्रेड करने लिए, यानी निजी जिहड़ा बिजनेस सी उसनूं करन तो रोकया गया इन्हों, और जो ये रिश्वत ले रही सी उसनूं भी रोकया गया। ये सारे काम ने जिहड़े ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दे विच कीते गए। नैक्सट आता है अपने कोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है इस दे विच पहला की किया गया, जो गवर्नर जनरल बनाया गया सी वारन हेस्टिंग्स बनया सी पहला गवर्नर जनरल सी जिहड़ा, इसने एक कमांडर इन चीफ बनाया गया, यानी एक कमांडर इन चीफ है जिहड़ा वो इनोग्रेट किया गया, बनाया गया ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश ट्रूप सी उन्हां दे लई एक कमांडर इन चीफ बनाया गया इंडिया दे विच, गवर्नर जनरल के द्वारा इसनूं बनाया गया। उस तो बाद पॉलीटिकल और कमर्शियल के लिए, कमर्शियल और पॉलीटिकल फंक्शनस के लिए अलग अलग ने जोड़े बोर्ड बनाए गए, डिमैर्केट किया गया, यानी पॉलीटिकल के अलग और कमर्शियल फंक्शनस अलग जी ऑर्गेनाइजेशन वो परफॉर्म करेगी। ये 2 ऑर्गेनाइजेशनस किहड़ियां सी, एक तो सी अपने कोल कोर्ट ऑफ डायरैक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरैक्टर है ये बनाया गया किस दे लई, कमर्शियल अफेयर्स के लिए, यानी कमर्शियल जो अफेयर्स सी बिजनेस वगैरह के काम देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरैक्टर बनाया गया। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलीटिकल अफेयर्स के लिए बनाया गया सी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इस मैंबर पूछे जाते हैं किन्ने ने, इस जो मैंबर ने टोटल 6 मैंबर ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। कोर्ट ऑफ डायरैक्टर के मैंशन नहीं है किन्ने मैंबर ने इसनूं बनाया गया सी फॉर कमर्शियल अफेयर्स। नैक्सट है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यह सुपरवाइज करेगा ऑपरेशंस नूं, गवर्नमेंट और रेवेन्यू नूं, ठीक है, जो भी इनकम होएगी उसनूं सुपरवाइज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जी, इस जो 4 मैंबर बनाए गए सी, यानी जो गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल ने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई सी जिस दे विच गवर्नर जनरल की हैल्प करने के लिए बनाई गई सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दे विच। उस दे विच 4 मैंबर बनाए गए सी, बट इन्हां नूं रिड्यूस किया गया, यानी डिक्रीज किया गया, इन्हां दी संख्या 3 कर दी गई। ये भी की गई सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दे विच।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇजेस ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ 20 ਈਅਰਸ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਸੈਲਰੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ 1919 ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਆਫੀਸਰ ਦੀ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਸ਼ਿਪ ਓਪੀਅਮ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਚਾਈਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਅਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ। ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇजेस ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिशियल तरीके नाल जो बिजनेस है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो आउटसाइड इंडिया तक पहुँचा दिता गया, यानी इस दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी सी जी वो पूरे विश्व तक अपना जो बिजनेस है वो व्यापार है वो वधाना चाहती सी, आउटसाइड इंडिया तक अपना जो ट्रेड है उसनों फैलाना चाहती सी। इस एक्ट के विच ये सारा कुछ है जोड़ा किया गया। नैक्सट है चार्टर एक्ट 1813। इस दे विच की सी जो मोनोपली इस दे विच बनाई गई सी 93 दे विच। इस एक्ट दे विच की सी जो मोनोपली सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई, यानी मोनोपली खत्म हो गई। एक ट्रेड रह गया सी जिसका नाम सी टी ट्रेड। टी ट्रेड रह गया सी चाइना के नाल। आपां नूं पुछया जांदा है जदों 1813 दे विच एक्ट दे विच मोनोपली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हो गई सी तां उस समय जो टी का ट्रेड रह गया सी वो किस देश के नाल रह गया सी, उसका आंसर होगा चाइना। नैक्सट है 1 लाख रुपया एनुअली अनाउंस किया गया एजुकेशन यानी सिक्ख्या के लिए अलाउड किया गया। इस दे विच की हुंदा सी कि लिटरेचर और साइंस के परपज़ के लिए यानी इस दे विच इंप्रूवमेंट के लिए 1 लाख रुपया जिहड़ा वो इन्वैसट किया जाएगा हर साल एनुअली, यानी 1 लाख रुपया हर साल एजुकेशन के उपर खर्चा किया जाएगा जिस दे विच लिटरेचर और साइंस के उपर इंप्रूवमेंट दिखाया जाएगा। नैक्सट है क्रिश्चियन पंडित सी जिहड़े इन्हां नूं इंडिया दे विच बुलाया गया कि अपना जिहड़ा वो धर्म विचार ने वो कर सकते हैं, यानी अपना जिहड़ा प्रचार है उसनूं इंडिया दे विच फैला सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी सी जिहड़े इन्हां नूं बुलाया गया इस एक्ट के अधीन कि अपना जिहड़ा धर्म प्रचार है वो अपना इंडिया दे विच कर सकते हैं। नैक्सट है चार्टर एक्ट 1833। इस दे विच की सी जो गवर्नर जनरल बनाया गया सी बंगाल का, इसनूं की बना दिता गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिता गया, जो कि पहले कौन बने सी विलियम बेंटिक बने सी, विलियम बेंटिक। यह क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। नैक्सट है बॉम्बे और मद्रास ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा अपना लैजिस्लेशन पावर्स ने जिहड़ियां वो खोतियां सी इस दे विच बॉम्बे ते मद्रास ने। गवर्नर जनरल गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, यानी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स ने जिहड़े उस दे उपर जो कंट्रोल होएगा कंप्लीट किसका होएगा गवर्नर जनरल, जो कि इंडिया दे विच तब्दील कर दिता गया। पहले कौन बने सी विलियम बेंटिक बने सी। नैक्सट है एक कानून का बंदा जिहड़ा वो भी इंट्रोड्यूस किया गया ऐड किया गया, जो कि तुहानूं दस्सिया गया सी 4 तो 3 किए गए पहला था और हुण 3 तो किन्ने करते 4 करते। एक किहड़ा मैंबर इंट्रोड्यूस करता लॉ मैंबर इंट्रोड्यूस करता, लॉ मैंबर यानी कानून का बंदा जिहड़ा ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल दे विच। यह कौन सी परसन इन्हां दा नाम है टी.वी. मैकॉले। यह क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। टी.वी. मैकॉले वो परसन सी जो कि ऐड किए गए गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे विच, जो कि गवर्नर जनरल की हैल्प करने लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई सी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस दे विच हुण टोटल मैंबर कितने हो गए 4 हो गए। चौथा बंदा कौन इंट्रोड्यूस किया ऐड किया टी.वी. मैकॉले, जो कि लॉ मैंबर सी जिसनूं फादर ऑफ लीगल सिस्टम और इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है इंडिया दे विच। अगर तुहानूं पूछा जाए एग्जाम च कि फादर ऑफ लीगल सिस्टम और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसनूं कहा जाता है इंडिया दे विच, उसका आंसर होगा टी.वी. मैकॉले। नैक्सट है लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1834। 1834 ईस्वी दे विच लॉ कमीशन है जिहड़ा बनाया गया। लॉज मेड फ्रॉम दीज एक्ट्स वर नेम्ड एज एक्ट्स, यानी पहला की हुंदा सी कि कोई भी रूल बनाता उसनूं रेगूलेशनस का नाम दिता जाता सी, बट इस दे विच की सी सारे दे सारे जिहड़े रूल्स बनाए जाते सी इन्हां नूं नाम दिता गया एक्ट्स, यानी कानून का नाम दिता गया इन्हां नूं, ठीक है, लॉज नूं। ईस्ट इंडिया कंपनी है जिहड़ी इसने अपनी जिहड़ी मोनोपली है वो खत्म करती एंड करती और कमर्शियल एक्टिविटीज़ दे विच, ठीक है। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई सी इंडिया दे विच, यानी बेसिकली जो अपने इंडिया दे विच व्यापार कर रहे सी वो कर रहे सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इन्हां दे द्वारा अपनी जिहड़ी मोनोपली सी उसनूं सैटअप किया जा रहा सी सारी फील्ड दे विच। इसनूं खत्म किया गया इन्हां दे द्वारा इत्थे और ये हुण किस दे विच आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव दे विच आ गए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ दे विच घुसन लग गए हुण ये इंडिया दे विच। यह तो याद रखना है।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 1853। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1833। 1833 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਫਿਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1853। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1833 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853। ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸ ਅਪਾਇੰਟਡ ਫॉर ਬੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਔਰ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ for the first time separated the legislature and executive functions of governor general executive council। यानी पहली बार सैपरेट किए गए जो गवर्नर जनरल दी काउंसिल के काम सी वो पहली बार सैपरेट किए गए। ठीक है, ओपन कंपीटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक क्वेश्चन एग्जाम च आ चुका है। ओपन जो कंपीटीशन है वो स्टार्ट किया गया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, यानी जो भी ICS IAS उन्होंने जोड़े एग्जामिनेशन ने कदों स्टार्ट करवाए गए, ये स्टार्ट करवाए गए चार्टर एक्ट 1853 के अधीन। नैक्सट है मैकॉले कमेटी बनाई गई। एक मैकॉले कमेटी है जी इंट्रोड्यूस की गई सिविल सर्विसिज के लिए, यानी जो भी सिविल सर्विसिज एग्जामिनेशन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई वो एक कमेटी बनाई गई सी। किस दे अधीन बनी सी, वो मैकॉले कमेटी बनी सी। लॉर्ड मैकॉले सी जिहड़े उसके चेयरमैन सी। एक क्वेश्चन एग्जाम च पूछा जाता है किस कमेटी ने इंट्रोड्यूस किए सी सिविल सर्विसिज, तो अपना आंसर हो जाएगा मैकॉले कमेटी। नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स वर रिड्यूस्ड 24 to 18, यानी ਜਿਹੜੇ कोर्ट ऑफ डायरैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ 24 ਤੋਂ 18 ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਘਟਾਏ ਗਏ। ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਬਿਕਮ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ, यानी ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ 6 ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ, यानी जो ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਸ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਐਕਟ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 1853 ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ। ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਯਾਨੀ ਕੁਈਨ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1858 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਕੁਈਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਦਾ 1858 ਦਾ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, यानी कुइन सी जी उसके अंडर आ गया सी सारा का सारा एम्पायर इंडिया का, क्योंकि कुइन नूं पता लग रहा सी कि जो कंपनी के इंपलॉइज़ ने ऑफिसर्स ने वो ब्राइब लैके रिश्वत लैके उत्थे जिहड़ी है रिश्वत फैला रहे हैं, यानी उत्थे गलत काम देखने को मिल रहा सी कि रिश्वत देखने को मिल रही सी। बेसिकली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपलॉई सी उन्होंने द्वारा रिश्वत ली जाती सी, अपने जिहड़े निजी व्यापार से उन्होंने वधाया जा रहा सी। इस करके ਇਹ जो सारा काम है कुइन नूं पता लग गया सी। इस करके कुइन ने सारा सारा जिहड़ा काम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रांसफर कित्थे कर लिया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर लिआंदा। नैक्सट अपने कोल
द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज चेंज टू वाइस रॉय ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कन्वर्ट करके किस नूं बनाता, वाइस रॉय ऑफ इंडिया दे विच। आपां नूं पुछिया जांदा है किस एक्ट के अधीन जो गवर्नर जनरल ने इन्हां नूं वाइस रॉय दे विच कन्वर्ट किया गया, तो अपना आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहले कौन बने सी और लास्ट गवर्नर जनरल कौन सी, आपां नूं पुछिया जांदा है पहले वाइस रॉय कौन सी और लास्ट गवर्नर जनरल कौन सी, उन्हां दा नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने जिहड़े यह लास्ट गवर्नर जनरल सी और पहले वाइस रॉय सी इंडिया दे। अ न्यू पोजीशन कॉल्ड सैक्रटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड, यानी क्वीन के द्वारा की किया गया कि एक सैक्रटरी ऑफ स्टेट है जी ये अलग तो एक पोस्ट तैयार की गई, पोजीशन तैयार की गई, बनाई गई एंड द पावर्स ऑफ द क्राउन वर एक्सरसाइज्ड बाय द सैक्रटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इस दे विच की होएगा, सब तो पहला उपर कौन होएगा, क्वीन, यानी आप ये कह सकते हैं कि सब तो पहला क्वीन होएगी, क्वीन नूं जवाबदेही कौन होएगा, क्वीन नूं जवाबदेही होएगा सैक्रटरी, जो कि कित्थे बैठेगा, लंडन दे विच, ठीक है। जो सैक्रटरी है यह जवाब किस तो मंगेगा, यह जवाब मंगेगा वाइस रॉय तो। इस तरह यह जी फॉर्मेशन है की गई, जो वाइस रॉय है यह जवाब किस नूं देगा, सैक्रटरी नूं देगा, जो सैक्रटरी है यह क्वीन नूं जवाबदेही होएगा अगे। इस प्रकार यह जी प्रोविजनस ने बनाई गई महारानी के द्वारा, क्वीन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अधीन। नैक्सट है द सैक्रटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इज़ अ मैंबर ऑफ कैबिनेट एंड इज़ रिस्पोंसिबल टू द ब्रिटिश पार्लीमेंट। जिवें मैंने तुहानूं दस्सिया कि सब तो उपर कौन होएगी, क्वीन होएगी, नीचे कौन होएगा, सैक्रटरी होएगा, सैक्रटरी के नीचे कौन होएगा, वाइस रॉय। वाइस रॉय जिहड़ा सारे काम इनू देगा दसेगा और यह सैक्रटरी है जिहड़ा सारी जी ड्यूटी है वो अपनी निभाएगा क्वीन दे कोल, यानी क्वीन दे कोल लंडन दे विच बैठेगा कौन, सैक्रटरी, इसनूं जवाबदेही होएगा सैक्रटरी। The Secretary of the State for India was assisted by a council called Council of India that contained 15 members। यानी जो Secretary of State of India है यह काउंसिल बनाई गई जिस दे विच 15 मैंबरी काउंसिल सी है। द काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, यानी इस दे विच जो मैंबर सी बेसिकली वो कित्थों सी, वो सारे सारे बेसिकली मैंबर सी, 15 के 15 मैंबर कित्थों सी, इंग्लैंड तो बिलोंग करते सी। द सैक्रटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हु वाज रिस्पोंसिबल टू द ब्रिटिश पार्लीमेंट गवर्नड इंडिया थ्रू द गवर्नर। अपने होर कुछ नहीं समझना, इस दे विच अपने सिर्फ ये समझना है कि वाइस रॉय बनाया गया, ठीक है। उस तो बाद यह जवाबदेही सैक्रटरी नूं होएगा, सैक्रटरी किस नूं होएगा, क्वीन नूं होएगा, ये अपने समझना इस दे विच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो एक क्वेश्चन है होर पूछा जाता है, आपां नूं पूछा जाता है किस एक्ट नूं गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है। गुड गवर्नेंस एक्ट है जिहड़ा वो कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नूं। यह क्वेश्चन है जिहड़ा PSSB दे विच पूछा जा चुका है। आपां नूं पूछा जाता है किस एक्ट नूं गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है, उसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नैक्सट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस दे विच की सी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सी जिहड़ी 3 मैंबर रह गए सी, इस दे विच 3 तो 4 कर दिते गए, ठीक है। जिहड़े वाइस रॉय सी, द वाइस रॉय वाज इंपावर टू अपॉइंट एडिशनल, जो 6 मैंबर बनाए गए सी पहला, उस दे विच 6 तो किन्ने बनाए गए, 12, यानी जो अपने कोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इस दे विच किन्ने मैंबर सी, 6 मैंबर सी। जिहड़े ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे विच 6 मैंबर सी, इन्हां नूं बढ़ा के कितना कर दिता गया, 12 कर दिता गया। और 12 तो 16 कदों किया गया, 1892 दे विच, एंड 16 तो 60 कदों किए गए, 1909 दे विच। यह क्वेश्चन एग्जाम च पूछे जाते हैं कि पूछा जाता है इस दे विच बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे विच जो 6 तो 12 मैंबर किए गए, वो कदों किए गए, वो किए गए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 दे विच। 12 तो 16 कदों किए गए, ये किए गए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 दे विच। नैक्सट है 16 तो 60 कदों किए गए, ये किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 दे विच। यह क्वेश्चन एग्जाम च अक्सर पूछे जाते हैं। नैक्सट है द वाइस रॉय ऑफ इंडिया वुड नॉमिनेट 3 इंडियंस टू द लैजिस्लेटिव काउंसिल आउट ऑफ 12, यानी 12 मैंबरी एक लैजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई सी जिस दे विच 3 मैंबर ने जिहड़े इंडियंस नॉमिनेट किया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया के द्वारा, इस एक्ट के अधीन किया गया सी। नैक्सट है इन द ईयर 1862 दे विच जो लॉर्ड कैनिंग है इसने नॉमिनेट किया 3 मैंबर्स नूं। किहड़े 3 मैंबर सी, वो राजा ऑफ बनारस सी, महाराजा ऑफ पटियाला सी, ठीक है, पंजाब दे विच। नैक्सट है सर दिनकर राओ। ये 3 मैंबर सी जिहड़े ये इंडियन सी जिन्होंं इस लैजिस्लेटिव काउंसिल दे विच जगह मिली सी। ये 12 मैंबर सी जिस दे विच 3 इंडियन सी, 9 किहड़े सी, वो सी ब्रिटिशर्स। 3 ये लिख दिते गए हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राओ। ये 3 मैंबर ने जिहड़े लैजिस्लेटिव काउंसिल दे विच ने जिहड़े इंट्रोड्यूस किए गए सी
ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1859 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਐਕਟ ਆਲਸੋ ਇੰਪਾਵਰਡ ਦਾ ਵਾਇਸਰੋਏ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ। ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਇਸਰੋਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਔਰ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਵਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਫੋਰਬਿਡਨ ਫਰੋਮ ਇੰਟਰਫੇਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇ ਡਿਡ ਨੋਟ ਪੋਜੈਸ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਇਹ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਮ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਾ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਵਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲਿਮਿਟਡ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇ ਵਰ ਫੋਰਬਿਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇ ਡਿਡ ਨੋਟ ਪੋਜੈਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ ਇੰਡੀਆ ਕੇਮ ਟੂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਾ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1892। 1892 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ indirect election was accepted with some limitation to the provincial councils। यानी इस दे विच की सी indirect elections ਜਿਹੜੀ ਉਹ accept ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ indirect elections। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਜ਼, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, यूनिवर्सिटीज़, चैंबर ऑफ कॉमर्स कुड भी रिकमेंडेड मैंबर्स। यानी ये मैंबर ने जो रिकमेंड किए गए। सेंट्रल लैजिस्लेटिव काउंसिल है जी 12 तो 16 मैंबर ने जो बनाए गए, यानी 12 तो 16 इस किए गए 1892 के। 3 प्रकार के सेंट्रल लैजिस्लेटिव काउंसिल से किहड़े सी ये नॉन ऑफिशियल्स जो नोमीनेट किए जाते सी। नैक्सट है ऑफिशियल मैंबर ने जो चुने जाते सी। नैक्सट है नॉन ऑफिशियल मैंबर्स जिस नोमीनेट तो इलैक्टेड दोनों आ जाते सी। ऑन द रिकमेंडेड ऑफ नॉन ऑफिशियल्स ऑफ 4 प्रोविंशियल। यानी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 3 प्रकार के मैंबर सी, ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स, तो इस जो थर्ड वाला नॉन ऑफिशियल है इस नोमीनेट तो इलैक्टेड दोनों आते सी। और 4 प्रोविंशियल लैजिस्लेचर सी अपने ये याद रखने ने किहड़े ने, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और नॉर्थ वैसटर्न प्रोविंस, वन बाय कोलकाता चैंबर ऑफ कॉमर्स। नैक्सट है द मैंबर्स ऑफ CLC कुड आस्क क्वेश्चनस। यानी इस जो क्वेश्चनस ने वो आस्क कर सकते सी, यानी पूछ सकते सी। ठीक है, ये तो नहीं याद रखना है। इस सिर्फ परमिशन मिली सी कि क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, बट उन्होंने डिस्कशन नहीं हो सकती। यानी उन्होंने जोड़े क्वेश्चनस आउणगे उन्होंने पार्लीमेंट के डिस्कशन नहीं होएगी। उन्होंने आंसर ने जोड़े वो एग्जीक्यूटिव जरूरी नहीं है कि वो इंडियंस को प्रोवाइड करेंगे आंसरस। उस तो बाद एक पॉइंट अपने ये भी याद रखना है कि जो स्पीकर होंदा है, स्पीकर है जिहड़ा वो रिजैक्ट भी कर सकता सी जो इंडियंस के द्वारा क्वेश्चनस पूछे जाते सी। यानी जो इंडियंस क्वेश्चनस पूछणगे, अराइज करनगे, उन्होंने डिस्कशन नहीं किया जाएगा पहला तो। सैकेंड पॉइंट की है, जो स्पीकर है वो उन्होंने रिजैक्ट भी कर सकता है कि वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये सारे जोड़े पॉइंट ने अपने मेजर पॉइंट याद रखने ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तो। नैक्सट अपने को फोर्थ एक्ट के सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एक्ट जो है इसनों मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है।
जो इस दे विच मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है क्यों कहा जाता है, इस दे विच जो मिंटो सी ये की सी वाइसरॉय सी उस समय, और जो मॉर्ले सी ये सी सैक्रटरी ऑफ स्टेट। इंडियंस इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी इस दे विच की सी इंडियन परसन ने जिहड़े पहली बारी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे विच जगह मिली सी इंडियंस नूं, इस एक्ट के अधीन मिली सी, यानी इस एक्ट के अंडर जो इंडियन सी पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे विच मतलब कि उन्होंने जगह मिली सी इंडियंस नूं। अगर पूछा जाए पहले इंडियन कौन सी जिन्हों के द्वारा वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जगह मिली सी, जिन्होंने उन्होंने नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी SP सिन्हा। SP सिन्हा पहले परसन ने जिन्होंने जगह मिली सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। उस तो बाद 16 तो 60 मैंबर ने जोड़े बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उन्होंने इनक्रीज़ किया गया, यानी लैजिस्लेटिव काउंसिल के जो 16 मैंबर से इन्होंने वधा के कितना किया गया 60 किया गया। नैक्सट है इस दे विच जो अपने को बजट हो गया, कोई भी क्वेश्चन राइज हो गया, उन्होंने हुण की किया जान लग्या डिस्कशन होने लग गया, यानी प्रीवियस आपने एक्ट के समझा सी 1892 के कि वह डिस्कशन नहीं कर सकते सी, बट इस दे विच डिस्कशन भी होने लग गया। ठीक है, नैक्सट है सैपरेट इलैक्टोरेट भी दिता गया, सैपरेट इलैक्टोरेट दिता गया, मुस्लिम्स नूं दिता गया। उस तो बाद जो अपने को सैपरेट इलैक्टोरेट का मतलब यह है कि उन्होंने अलग तौर पर दर्जा दिता गया, सैपरेट इलैक्टोरेट दिता गया मुस्लिम्स नूं। इत्थे जो सैपरेट इलैक्टोरेट का मतलब है वह है कि जो मुस्लिम परसन ने वो अपने मुस्लिम वोटर्स को चुन लैणगे, यानी जो मुस्लिम लोग ने ये अपने मुस्लिम कैंडीडेट को चुन लैणगे। इस तरह जो हिंदू लोग ने वो हिंदू को चुन लैणगे, यानी इत्थे जात पात की गल की गई सी इस एक्ट के। फॉर द फर्स्ट टाइम सीड्स ऑफ सैपरेटिज्म वर सोन, यानी जो आप देखते हैं ना कि अपन पूछा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जिहड़ा पहली बार जो बीज से बोया गया सी, कित्थे बोया गया सी, वो बोया गया सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के विच। यह क्वेश्चन है जिहड़ा बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, PPSC का फेवरेट क्वेश्चन भी है। आपां नूं पूछा जाता है पहली बार सैपरेटिज्म का जो बीज सी वो कित्थे बोया गया सी, किस एक्ट के विच। वो पहली बार बोया गया सी किस दे विच, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के विच, जिसनूं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 1909 एक्ट है जिहड़ा इसनूं लीगलाइज किया गया कम्युनिज्म। इस दे विच मिंटो जो है इसनूं मन्निया जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलैक्टोरेट। कम्युनल इलैक्टोरेट का मतलब की है, इस दे विच जो हिंदू परसन ने वो हिंदू नूं चुन लैणगे, जो मुस्लिम ने वो मुस्लिम कैंडीडेट नूं चुन लैणगे, यानी हिंदू मुस्लिम वाली गलबात की गई सी इस एक्ट के विच, जिसनूं नाम दिता गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नैक्सट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसनूं मोंटेगे चैलेंज रिफॉर्म भी कहा जाता है, यानी मोंटेगे चैलेंज रिफॉर्म भी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस दे विच जो चैलेंज फोर्ड ने ये की ने वाइसरॉय ने, मोंटेगे की ने ये सैक्रटरी ने स्टेट सैक्रटरी ऑफ स्टेट ने इंडिया के। ठीक है, इस दे विच की सी रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट, यानी जिम्मेदार सरकार की गल की गई सी इस एक्ट के विच। बाईकैमरलिज्म पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, यानी बाईकैमरलिज्म का मतलब की सी सेंटर से अलग स्टेट काम करेगी, सरकार काम करेगी, और स्टेट के अलग सरकार है जी काम करेगी। यह बाईकैमरलिज्म का जो कंसैप्ट सी पहली बार यह इंट्रोड्यूस किया गया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के विच। नैक्सट है इस दे विच की सी उस समय लोक सभा राज्य सभा की गल नहीं होंदी सी, यानी इत्थे आएगा लोक सभा, इत्थे आएगा राज्य सभा। लोक सभा राज्य सभा की गल नहीं होंदी सी, उस समय नाम बोलिया जाता सी अपर हाउस ते लोअर हाउस। लोअर हाउस नूं लोक सभा बोलिया जाता है हुण प्रेजेंट टाइम ते, अपर हाउस नूं प्रेजेंट टाइम ते राज्य सभा बोलिया जाता है। जो लोअर हाउस सी इस दे विच मैंबर किन्ने सी 145, और अपर हाउस जिसनूं काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलिया जाता है, इस दे विच मैंबर किन्ने सी 60। इसनूं बोलिया जाता है लोक सभा ते राज्य सभा, या फिर अपर हाउस से लोअर हाउस। नैक्सट है डायरकी वर्ड, यानी आपको पूछा जाता है पहली बार डायरकी वर्ड है जो किस एक्ट के अधीन इंट्रोड्यूस किया गया सी, तो अपना आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एक क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, याद रखना है। यानी डायरकी वर्ड दुशासन की पहली बार गल की गई सी 1919 एक्ट के अधीन। नैक्सट है सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स वर गिवन टू इंडियंस, कुछ डिपार्टमेंट्स जोड़े इंडियंस को दे दिते गए, सम विद द गवर्नर, यानी गवर्नर के कुछ कोल रह गए सी जो डिपार्टमेंट सी। द कंसैप्ट ऑफ इलैक्शंस वर इंट्रोड्यूस, यानी पहली बार जो इलैक्शन का कंसैप्ट है वह इंट्रोड्यूस किया गया सी। लिमिटेड फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस की गई सी। ओनली लैंड होल्डर्स टैक्स पेयर्स, यह जो सी यह पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जी रिक्रूटमेंट एजेंसी सी सिविल सर्वेंट उन्होंने रिक्रूट करने के लिए जी स्टार्ट की गई सी, प्रोवाइड कर दी गई सी, एस्टैबलिश कर दी गई सी पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो स्टेट के PCS होंगे ने उन्होंने एस्टैबलिश कर दिया गया सी। ठीक है, कम्युनल रिप्रजेंटेशन, यानी कम्युनल रिप्रजेंटेशन दिता गया, सिख नूं मिल गया सी
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ 1919 ਰਿਫਾਰਮਸ ਫੇਲਡ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ in India and this lead to ਸਵਰਾਜ, यानी ਇਹ जो रिफॉर्म्स ने ਇਹ फेल हो गए सी, इस करके इत्थे जो ਸਵਰਾਜ है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सी इंडियंस के द्वारा सैल्फ गवर्नमेंट एजुकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार स्वराज है जो वर्ड लिया गया। सैल्फ गवर्नमेंट यानी साडी आपदी सरकार होएगी, यह पहली बार इस एक्ट के इंट्रोड्यूस किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि जो 1919 के रिफॉर्म्स लिया गए सी ब्रिटिशर्स के द्वारा वो फेल हो गए सी, इस करके महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वराज वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। नैक्सट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस जो दुशासन की गल की गई सी इसनों खत्म किया गया, यानी इसनों अबोलिश किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के अधीन जो अबोलिशन किया गया डायरेक्टरी का दुशासन का सेंट्रल लैवल के उपर जो अबोलिशन किया गया वो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया फैडरेशन, यानी ऑल इंडिया फैडरेशन नूं सैटअप करने के लिए गलबात की गई, बट सैटअप नहीं की गई सी इस एक्ट के अधीन। ठीक है, इनक्रीज इन साइज ऑफ लैजिस्लेचर्स के विच इनक्रीज किया गया साइज, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, ठीक है, डिवीजन ऑफ सब्जैक्ट्स, यानी सारा कुछ इनक्रीज किया गया। लैजिस्लेचर के विच जो इंडियन परसनस ने उन्होंने बढ़ाया गया, फ्रेंचाइज बढ़ाई गई, जो सब्जैक्ट्स ने इन्हों तीन जो लिस्टां ने उन्होंने डिवीजन कर दिता गया, यानी डिवाइड कर दिता गया। ये तीन लिस्टां ने जिहड़ियां वो आपां याद रख सकते हैं, फैडरल लिस्ट, फैडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, यह तीन लिस्टां सी जिन्हां दे विच यह जो डिवाइड किया गया सी। डायरैक्ट इलैक्शनस ने जिहड़े पहली बार 1937 के विच ने जिहड़े होए गए करवाए गए, सॉरी, ठीक है। कम्यूनल इलैक्टोरेट साडा रिटेन रहा, सैपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, यानी जो म्यांमार है जिसनों पहला बर्मा बोलते सी इसनों सैपरेट कर दिता गया इंडिया तो, यह है बर्मा। नैक्सट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइड तीन भागों के डिवाइड किया गया सी, तीन लिस्टां दे विच। फैडरल लिस्ट जिस 59 सबजैक्ट सी, नैक्सट है प्रोविंशियल लिस्ट 54, नैक्सट है कॉन्करेंट इस 36 सबजैक्ट्स ने। यह तो असीं याद रख सकते हो, फैडरल लिस्ट नूं प्रेजेंट टाइम ते यूनियन लिस्ट बोलते हैं, इसनूं स्टेट लिस्ट बोलते हैं, इसनूं कॉन्करेंट लिस्ट ही बोलते हैं। जो यूनियन लिस्ट होंदी है इस सेंट्रल गवर्नमेंट है जी सारे कानून वगैरह बनाती है, अप्लाई करती है। प्रोविंशियल दे विच यानी स्टेट दे विच की होंदा है कि स्टेट है जी सारे कानून बनाएगी, उसनूं मेनटेन करेगी, लागू करेगी। कॉन्करेंट दे विच दोनों स्टेट और सेंटर दोनों ही बना सकते हैं, दोनों ही लागू कर सकते हैं। नैक्सट है बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, लैजिस्लेटिव असैंबली प्लस काउंसल्स, यानी बाईकैमरलिज्म किया गया 6 दे विच किया गया, 11 प्रोविंसेस थी, 6 दे विच जिहड़ा अडॉप्ट कर लिया गया लैजिस्लेटिव प्लस लैजिस्लेटिव काउंसल। उस बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एस्टैबलिश किया गया। अपन पूछा जाता है कदों एस्टैबलिश किया गया, वह किया गया 1935 के विच। जो रिकमेंडेशन सी हिल्टन यंग कमीशन की, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के उपर जो RBI है इसनों इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एस्टैबलिश किया गया। RBI एक्ट 1934 के अधीन, यानी 34 के अधीन RBI एक्ट 1935 के विच बनाया गया। RBI एक्ट 1934 के अधीन बनाया गया सी, ये भी आपने याद रखना है। सो ये सी इंडियन पॉलिटी का लैक्चर नंबर 1, जिस दे विच आपने काफ़ी डिटेल दे विच जो बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसनूं कवर किया है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिहड़ा इंडियन हिस्टरी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसनूं कवर किया है इस लैक्चर नंबर 1 दे विच। इस लैक्चर नंबर 1 दे विच बस इन्ना ही, मिलते हाँ लैक्चर नंबर 2 दे विच। सो थैंक यू सो मच।